Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, I hope your GMAT preparation has started. See, to begin with GMAT preparation, it is easy, but with your work, to sustain your preparation is a challenging task. So, my humble request is that if you have made up your mind that you're going to, appear for GMAT in the upcoming months, ensure that you stay dedicated and motivated. कंसिस्टेंसी इज़ द की. ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऑफिस में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप फिर जीमैट की प्रेपरेशन को छोड़ के उधर अलाइन हो जाओ. There can be a possibility that those opportunities are lucrative and can help in your growth in your long term career, but you can still give the GMAT exam. Your scores remain valid for significant time and you can later utilize the score if needed, right? तो अगर preparation begin कर दिए तो paper ज़रूर देना, right? So on this note, let's begin with today's session. तो हमने एक session किया था जहाँ पे हमने orientation किया कि reading comprehension में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. देन वी हैड वन सेशन वेयर वी डिस्कस्ड हाउ डू वी रीड द पैसेज, राइट? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो. देन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टेस्टेड इन GMAT. So what is the intent? What are the questions trying to test you on? And in this session we are going to talk about how trap answer choices are created. तो अगर आप फ्लो ऑफ द सेशंस देखेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन टू दिस सेशन, दे हैव बीन प्लान्ड एंड अलाइन्ड इन सच अ वे that in every step of question solving you are helped, right? The sessions benefit you. So this is this is really important and is expected from you that you're going to pay attention to all these strategies and you're going to apply them. तो strategies आना ज़रूरी है, अच्छी बात है अगर पता चल गई हैं, पर अगर पता चलने के बाद भी अब अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको जितना आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या एफिशिएंसी और एक्यूरेसी आप टारगेट कर रहे हो उतनी नहीं मिल पाती, राइट? सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू लर्न द राइट स्ट्रैटेजीज, लर्न द राइट अप्रोच, स्पेंड सम टाइम ऑन अप्लाइंग दो स्ट्रैटेजीज टू द एक्चुअल क्वेश्चंस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एंड देन यू विल सी योर एक्यूरेसी इंप्रूविंग, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. और एक बार आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर जाती है तो फिर टाइम शॉर्ट हो ही जाता है, राइट? तो चलिए सेशन को बिगिन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस क्रिएट की जाती हैं इन GMAT. So I always keep on telling my students that to ace the VARC section or the reading comprehension session or in general all the questions that you get in GMAT pertaining to the English section, you are given 5 choices. 4 तो definitely incorrect है. तो हमारा throughout the discussion या question solving जब हम कर रहे हैं, हमारा एक ही एजेंडा है कि हम incorrect answer choices को eliminate करते जाएं. जितना aggressively आप elimination करोगे उतना ease के साथ आप आंसर चॉइसेस तक पहुंचोगे. अब ये देखिए, आपको ऐसा समझना जरूरी है कि मेरे पास अगर 5 एनिमीज हैं और मैं 5 के साथ एक साथ लड़ रही हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा फोकस बहुत जगह बटा हुआ रहेगा. पर अगर मैं 2 एनिमीज के साथ लड़ रही हूँ तो आई कैन चैनलाइज माई एनर्जी बेटर, राइट? तो अगर आप फर्स्ट गो में एक चॉइस भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, करो. जितना अग्रेसिवली आप एलिमिनेट करोगे उतना आप बढ़िया तरीके से राइट आंसर तक पहुंचोगे, राइट? सो another reason why I suggest my students to be aggressive in doing the elimination is कि देखिए क्वांट में और डेटा इनसाइट्स में यूनिकनेस है आंसर्स में, राइट? सो वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन, गेटिंग 64%, देयर इज अ चॉइस and you can mark it, right? You will not get distracted with the other answer choices. However, when we deal with reading comprehension or critical reasoning questions, there are distractions, there are trap answer choices, there can be multiple ways to present the same answer, right? Paraphrasing can be done in many ways. So the way you are thinking, the choice of words that you have will not always align or will hardly align with the answer choices that have been used or created by the paper creator, right? तो जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहा है, आंसर चॉइसेस को क्रिएट कर रहा है, आपके आंसर्स भी उन्हीं वर्ड्स में, उन्हीं कंपोनेंट्स में अलाइंड हो, ऐसा तो होगा नहीं, राइट? सो और इनफैक्ट GMAT में कई बार हमको ये भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये तो सही है कि ये 4 इनकरेक्ट है, बट जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना इसमें मजा नहीं आ रहा. दिस इज ऑल्सो
a very commonly seen situation that the answer choice which is given as the right answer is at times not a very promising one. Again, you have to play with the options that you have. So if you are sure that the other four are wrong, and that sort of surety and clarity you need to have, then whatever remains will serve as the right answer, right? So I hope I've explained it to you why process of elimination is necessary, right? It's a very logical frame of mind that when we use words to put our answer, there can be multiple usages. Uniqueness is not possible, and when you are eliminating your incorrect options, you are focusing more on the correct ones or the remaining ones, and you can, then observe those choices or evaluate the remaining options more effectively, right? So let's see how trap answer choices are created in GMAT. So पहला तो extreme. So when we talk about extreme, whenever you encounter, this is something which is very, very important, very commonly used, right? So whenever you are, encountering words like all, always, none, only, must, never, always be suspicious about these answer choices. Very high possibility that these are trap answer choices. मतलब 95% times जिन statements में ये extreme words का usage होता है वो incorrect होता है. अब extreme का एक और मतलब होता है कि author के claim से ज़्यादा stronger claim correct answer नहीं हो सकता. तो अब जो passage लिख रहा है ultimately authority तो उस passage की author के पास ही है, right? Anybody can create the questions. अब मैं अगर आपको एक passage दूं, आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, आपका फ्रेंड भी बना सकता है, मैं भी बना सकती हूँ, मेरी फ्रेंड भी बना सकती है, राइट? और सब अपने तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ऑप्शंस को बनाएंगे, सही ऑप्शन को बनाएंगे, राइट? सो फॉर अस इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट anybody can create the questions, but again you can't have any answer statement that's putting a claim which is stronger than the claim made by the author. तो वो भी extreme है. जैसे author ने कहा कि एक event होने की possibility है, choice बोलते this event is going to happen, certainly is going to happen. तो ये extreme हो गया क्योंकि author के claim से stronger claim है, right? So wherever you are making your notes, please put these important sentences. You can directly write this. You can't have an answer choice which is stronger than the claim made by the author. ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो कहीं, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. I'll give you 30 seconds also, right? You don't need to pause, you do it right now because this is going to be super helpful in cracking the questions. So go ahead, write the first trap. I hope it is clear. Now let's talk about the second trap. So second trap is what we are referring as scope trap. So it is really important to identify कि कोई भी answer choice which goes beyond the scope of the discussion, right? जिसको हम बोलते हैं out of scope, वो correct answer नहीं हो सकता. जैसे दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता है कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर चॉइस आएगी और मे बी आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस स्टेटमेंट को पिक करना है. आपके लिए करेक्ट स्टेटमेंट वो है जो पैसेज से वैलिडेट होता है. मे बी बी इज करेक्ट, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम विद बी एज अ स्टेटमेंट. यू नो दैट बी इज करेक्ट, बट अगर बी पैसेज से वैलिडेट नहीं होता, वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, राइट? तो हम क्या बोलते हैं? एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, मतलब द आंसर हैज टू बी, मस्ट बी, should be supported from the text, right? So when we say scope trap, there can be some statements given which otherwise might be true as per your awareness but are not validated, right? So अब स्टूडेंट्स को लगता है यार दोनों बातें तो सही है, अब मैं क्या करेक्ट आंसर चॉइस को पिक करूं? आप उस स्टेटमेंट को अपना आंसर पिक करिए जो पैसेज से वैलिडेट होता हो, पैसेज से जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, राइट? सो दैट्स द सेकेंड ट्रैप. सो आई होप बोथ दीज ट्रैप्स आर क्लियर, राइट? अब यहाँ पर जो सिंगल फैक्ट फोकस है, इसका मतलब ये है कि एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमने देखा कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है. अब आप बी और सी में फंस गए. आपने देखा कि सी स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर सी स्टेटमेंट सेकेंड पैराग्राफ का फोकस बता रहा है या सेकेंड पैराग्राफ का पर्पस बता रहा है. सो
इन जनरल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, पर्पस करेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, बट आपका क्वेश्चन तो प्राइमरी पर्पस पूछ रहा था ना, तो क्वेश्चन ने पूछा था पूरा का पूरा पैसेज क्यों लिखा है, और एक ट्रैप आंसर चॉइस बोल रही है कि सेकेंड पैराग्राफ का क्या पर्पस है. सो दैट्स वेयर स्टूडेंट्स गेट इनटू द ट्रैप. यहाँ पर क्या हेल्प करता है कि आप कितना केयरफुली फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं. अब ये मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ, हर क्लास में बताती हूँ, बट स्टिल ये कॉमनली मेड मिस्टेक है, वापस बताऊंगी कि क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस, है ना. तो कई बार देयर कैन बी टू ऑप्शंस विच आर करेक्ट फ्रॉम द पैसेज, राइट. तो जैसे प्रीवियस केस में देयर वर टू ऑप्शंस, एक पैराग्राफ के बेसिस पे वैलिडेट ही नहीं होता तो वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. बट देयर कैन बी केसेस, जैसे अगर हम सिंगल फैक्ट फोकस पे बात करें तो देयर कैन बी टू ऑप्शंस विच आर बोथ बीइंग वेरीफाइड फ्रॉम द text, but you need to pick that particular statement which is addressing the question. अब अगर प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है और एक जनरल पर्पस है जो पूरे पैराग्राफ पैसेज को एड्रेस कर रहा है, और एक लिमिटेड एक लाइन का पर्पस बता रहा है, या एक एग्जाम्पल दिया उसका पर्पस बता रहा है, तो क्वेश्चन पे जाओ. क्वेश्चन ने प्राइमरी पर्पस पूछा तो उस स्टेटमेंट को पिक करो जो पैसेज को होलिस्टिकली कवर कर रहा है. वैसा वर्सा भी हो सकता है. क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन का क्या फंक्शन है, और एक चॉइस पूरे पैसेज का फंक्शन बता रही है, तो फिर आपको फिर कैसे प्ले करना है एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट. हम क्या करते हैं, हम ट्रू और फॉल्स खेलने लग जाते हैं. ये इन्फॉर्मेशन सही है, ये इन्फॉर्मेशन सही है, अब क्या करें, दो स्टेटमेंट सही हो गए पैसेज के बेसिस पे, तो किसको आंसर करें. तो फिर क्वेश्चन का गोल क्या रह गया, क्वेश्चन तो यूजलेस हो गया, राइट. अगर क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कंसिडर ही नहीं कर रहे, आप अटेंशन ही नहीं दे रहे, मतलब आप यही नहीं सीख पा रहे कि क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. There has to be some purpose when the question is written for you. So the objective is that you are understanding the passage, you are addressing the goal that is given to you, right. You are staying relevant to the objective, you are clear with your focus. So that sort of clarity you need to bring in. Pay attention to the question and pick the answer choice which helps you answer the question, right. So I hope these three traps are clear to you. चलिए, तो कई बार क्या होता है व्हेन वी से मिसमैच इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ स्टेटमेंट्स 90% करेक्ट होंगे, एक वर्ड और ट्रैप की वजह से पूरा का पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, राइट. सो यू हैव टू सी कि जो आपका आंसर है वो पूरा का पूरा ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी वेरीफाइड. सो यू विल सी यहाँ तक तो आंसर चॉइस पूरी करेक्ट है, और एंड में एक वर्ड लिखा जिसको आपने पहुंचे ही नहीं, आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपने ऊपर से देखा, आपने कहा यस यस दिस इज बीइंग वेरीफाइड एंड यू मार्क इट एज एन आंसर. मे बी 90% तक तो वो स्टेटमेंट करेक्ट था, एक वर्ड या फ्रेज की वजह से पूरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. सो दीज आर again attractive और lucrative choices. You need to see each and every word is verified. तो जब आप चार choices को eliminate कर दो, before marking the final answer that you have picked, validate each and every word before you take a final call. ठीक है. चलिए, now let's see the next trap which is opinion answers, right. तो understand this कि judgment तो नहीं आप पास कर सकते, inference का question आएगा, judgment का नहीं आएगा. तो जहाँ भी आपको more, less, मोस्ट, बेटर, वर्स, वर्स्ट, इस तरह की कंपैरेटिव टर्म्स दिखती हैं, आपकी घंटी बजनी चाहिए कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी अ ट्रैप. इसको ऐसे समझिए, जैसे एक पैसेज है जिसमें बात हो रही है कि एक ऑथर ने नॉवल लिखा, नॉवल बड़ा कॉम्प्लेक्स था, लोगों को समझ नहीं आया, तो फिर अल्टीमेटली जो पब्लिशर्स थे उन्होंने ऑथर को एक कल्चरल फेस्ट में इन्वाइट किया और कहा कि आप बताओ कि आप क्या लिखना चाहते थे नॉवल में, या नॉवल किस बारे में. ठीक है, एक बार अगर आपको कहानी नहीं समझ में आई तो मैं वापस बता देती हूँ, और अगर वापस बताने के बाद भी आपको थोड़ी दुविधा रहे, आप वीडियो को वापस प्ले कर लेना, राइट, पर समझना जरूर. सो देयर इज दिस पैसेज व्हिच टॉक्स अबाउट एन ऑथर हु हैज रिटन अ नॉवल व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स. लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो पब्लिशर्स ने ऑथर को इन्वाइट किया और कहा कि आप समझाओ कि आपका नॉवल कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द नॉवल ऑल अबाउट, राइट. अब एक क्वेश्चन दे दें आपको, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, और एक चॉइस बोल दें दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नॉवल द ऑथर हैज एवर रिटन. आप नहीं बोल सकते, ये ट्रैप है, राइट. अब पूरे डिस्कशन में, ये तो मैंने 3-4 लाइन में बता दिया, बहुत डिटेल में 15-20 लाइन्स में पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो सही कि हाँ यार इतना कॉम्प्लेक्स है कि पब्लिशर्स को बुलाना ही पड़ गया ऑथर को कि समझाओ कि नॉवल क्या कहना चाह रहा है. बट are we talking about the other novels written by the author in the discussion? No. So how can we say that it is the most complex novel? We can't say, right? So that's how the trap answer choices are created. आप रश में होते हो, आप प्रेशर में होते हो,
क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो, यूजुअली जी मैट के स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनका खुद का डिसीजन मेकिंग भी हर दिन स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कैसे तो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो कि येस इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बट यू हैव टू रिफ्रेन, राइट? यू हैव टू see that are we talking about the other novels, is there any mention, or it was just a trap? Most of the times it is a trap, so you have to be careful, you have to be aware, right? Chaliye, now irrelevant answers which can be not in the given context, not relevant, which are easy eliminations, but again you need to pay attention. कई बार केयरफुल ना होके या जल्दबाजी में भी गलती हो जाती है. There are some mistakes which you don't want to do it, which you would have not done if you would have been in an easy environment, but under the stress of exam pressure, heat of that moment, you might do. So you have to be rational, you have to be well prepared, you have to give a lot of mocks, you have to align yourself with the actual exam conditions, ताकि ऐसी mistakes को आप avoid कर सको. ठीक है? So I'm sure you've understood how trap answer choices are created. So let's solve one passage. This passage actually comes from the official guide itself. So ये OG GMAT के official guide का ये passage है. We are going to solve this along with the questions. It's going to be an interesting one. So start reading. I'll just step aside. I'll give you some time. अच्छे से read करो. See what the passage is trying to convey, and then I'll change the slide once you have read this. So it's basically you need to be good at physics. थोड़ा सा physics oriented passage है. अब देखिए, I've specifically picked this क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप बहुत टाइम बाद तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ देते हो, राइट? बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन. इस तरह का पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग फ्रॉम साइंस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना. यू कैन फिनिश योर रीडिंग एंड देन प्ले द वीडियो अगेन. Suppose we were in a spaceship in a free fall where objects are weightless. तो free fall में क्या होता है? Objects का they are without weight, weightless, and wanted to know a small solid object's mass. So what is the condition the author has presented? कि we are in a spaceship, that's a condition. ठीक है? Objects are weightless and हमें चाहिए एक small object का mass. That's what we want to know. We could not simply balance the object against another known weight, जैसे हम usually measure करते हैं. तो कह रहे कि how do we do it on earth? वैसा हम नहीं कर सकते when we are in a spaceship, right? So that we cannot do what we are doing on earth. तो अगर आपसे question आए कि how do we measure the weight on the earth, then we can come to this particular statement कि we balance the object against other of known weight. जैसे आप तो तराजू लेते हो, सिमिलरी बात बोल रहा है कि ऐसा आप spaceship पे तो कर नहीं सकते. So the unknown mass could be determined. So how? अब कैसे करें? If you can't do what we do on earth, then how? The unknown mass could be determined, however, by placing the object on a spring scale and swinging. Swinging मतलब moving the scale in a circle at the end of the string. So how and what do we do? That has been explained. The scale would measure the tension in the string. तो आप उसको movement दे रहे हो, तो जो string है उस पे टेंशन मेजर हो जाएगी स्केल से, विच वुड डिपेंड ऑन, तो जो स्केल वुड मेजर द टेंशन विच इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस पे डिपेंडेंट है, तो आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन पे और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, राइट? So the tension would be greater, the greater the mass or the greater the speed of revolution. From the measured tension and speed of whirling, whirling is movement, we could determine the object's mass. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, राइट? सो अब आपको ये नहीं पता कि अच्छा मैंने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं या बहुत पहले पढ़ी थी, तब तो मुझे पता था टेंशन क्या होता है, अब मुझे नहीं पता, इट इज फाइन, राइट? एज लॉन्ग एज यू कैन रिविजिट, गैदर द इंफॉर्मेशन. देखिए वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो knowledge based है. So like I said, it's an inference. The inferences that you need to draw are based on the facts that are provided. So it's evidence based reading, it's not a knowledge based test. So yes, you know कि पहली कंडीशन क्या है कि if we are in a spaceship and it is in a free fall, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हैं, तो अगर आपको एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के मास को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसा आप अर्थ पे करते हो उस कन्वेंशनल तरीके से नहीं करा जा सकता. तो किस तरीके से करा जा सकता है? वो कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग स्केल पे रखिए और स्केल को स्विंग करिए इन अ सर्कुलर फैशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब डोरी या धागा जो कनेक्ट कर रहा है. तो स्केल टेंशन को मेजर कर लेगा और वो किस पे डिपेंडेंट होगा? स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन पे और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे. तो अगर टेंशन ग्रेटर है तो द ग्रेटर द मास और द ग्रेटर द स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन. सो हाउ इट इज अ डिपेंडेंट, वो रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया, और मेजर टेंशन से और स्पीड ऑफ मूवमेंट से हमें ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाएगा. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर.
So now let's read further. Astronomers use an analogous मतलब similar procedure. तो पहले उन्होंने एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया और अब उन्होंने कहा कि एस्ट्रोनॉमर्स भी एक सिमिलर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं. ठीक है, कैसे? टू वेट डबल स्टार सिस्टम्स. तो क्या होता है? How the speed with which the two stars in a double star system circle one another depending on the gravitational force between them, which holds the system together. So this attractive force analogous to the tension in the string. तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि क्या analogy है? So the attractive force is considered to be analogous to the tension in the string, right? Is proportional to the stars combined mass. तो force किससे proportional है? To the combined mass. It's proportional to the combined mass according to Newton's law of gravitation. So what is the law of gravitation that's acting? Newton's law of gravitation. By observing the time required for the stars to circle each other and measuring the distance between them, we can deduce the restraining force. तो हम कैसे restraining force को deduce कर सकते हैं? अब यहाँ पर pressure मत डालिए. अगर पूछा जाता है restraining force को कैसे deduce कर सकते हैं, we'll get here and get to the answer, right? Rather than at this point of time taking the pressure, right? And hence the mass. So eventually आपको restraining force पता चल जाएगा और फिर आप mass identify कर पाओगे. राइट. सो बस इतना सा ही पैसेज था. लाइक सिंपल वन. ऐसा कुछ बहुत ही फिजिक्स ओरिएंटेड आपको जरूर लगा होगा. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू माइट फील लाइक ओ माय गॉड सो मच टेक्निकल साइंटिफिक फिजिक्स तो मुझे बचपन में इतनी खराब लगती थी एंड नाउ डीलिंग विद दिस पैसेज. बट सी इवेंचुअली जिससे आप डरोगे ना वो उतना आपको और सताएगा. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. तो हम कई बार पैसेज को देख के डर जाते हैं बट क्वेश्चंस रिलेटिवली डूएबल होते हैं. और अगर हमें पता हो कि कहाँ पर जाना है एंड इफ वी रीड एंड वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन. अगर आप शुरू से पैसेज पढ़ने में प्रेशर ले रहे हो कि टेंशन क्या है या मेरे को तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता या प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट तो मेरे को अब याद नहीं आ रहा, राइट? सो देन यू कैन गेट इंटिमिडेटेड. बट अगर आप पूरे पैसेज में यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द एंटायर passage, you're able to read the entire passage and you're able to map that where do you need to revisit in case the question is asked and you revisit. क्योंकि देखिए जब specific question कर रहे हैं और revisit कर रहे हैं तब आपकी tension बहुत कम है as compared to the point of time where you are just beginning to read the passage, because तब आप पे प्रेशर है कि पूरा पैसेज रीड करो और फिर फिर क्वेश्चंस पे आना है और हम कहीं पैसेज में अटक ना जाएं, पढ़ते पढ़ते रिविजिट ना कर लें या मोमेंटम ही ना लूज कर जाए. अब जब आप पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करके आ गए हो क्वेश्चंस पे तो आपका वो प्रेशर ईज आउट हो गया है, राइट? अब रिविजिट करना और तब पता है कि कहाँ पे रिविजिट करना आपका गेम बहुत बहुत एक्सटेंड तक सिंप्लीफाई कर देता है, राइट? तो चलो अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करो. आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, राइट? देयर इज नो रश. आप अच्छे से पढ़ो. It can be inferred from the passage that the two procedures described in the passage have which of the following in common, right? तो कौन से procedures apply करें? एक तो उसने कहा कि आप spaceship पर हो और spaceship पे अगर आप weightlessness है मास का और अगर आप उसका ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना चाह रहे हो तो आप अर्थ में जैसे करते हैं उस कन्वेंशनल तरीके से तो नहीं कर सकते. तो कौन सा तरीका बोला? वो टेंशन में देखा कि आप क्या करेंगे, एक उसको मूवमेंट करेंगे तो टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन किसके प्रोपोर्शनल है उसकी बात करी. और साइंटिस्ट जो दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, राइट? सो साइंटिस्ट आर यूजिंग द अदर मेथड. व्हाट इज द मेथड साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स आर यूजिंग? टू वेट डबल स्टार सिस्टम्स एंड अगेन हाउ इट इज बीन ड्रिवन. तो एक बार आप चाहो तो रिविजिट कर लो और अब आंसर चॉइसेस को एक्सप्लोर करो, एग्रेसिवली एलिमिनेशन करो और देखो कि कौन सी चॉइस बेस्ट फिट इन होती है. देखो they have been applied in practice तो ये तो हम नहीं कह सकते. they rely on the use of device that measures tension. तो दूसरे में तो टेंशन मेजर ही नहीं कर रहे थे, दूसरे में तो restraining force को मेंशन कर रहे थे. ट्रैप है. The purpose is to determine an unknown mass. As simple as that. दोनों का ऑब्जेक्टिव तो unknown mass को ही डिटरमाइन करना था. इतना सिंपल क्वेश्चन है, राइट? अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ते, the unknown mass could be determined by this. राइट? सो अननोन मास हाउ कुड बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट. पूरे प्रोसीजर को समझाया और अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि आप टेंशन आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ वर्ल्डिंग्स और मेजर टेंशन से आप ऑब्जेक्ट का मास आइडेंटिफाई करो. तो एंड गोल क्या था? ऑब्जेक्ट का मास आइडेंटिफाई करना. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पैसेज की
एनालॉगस प्रोसीजर को यूज करते हैं टू वे डबल स्टार सिस्टम्स। फिर डबल स्टार सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया और फिर उसके बाद बोला वी कैन डिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड हेंस द मासेस। सो अल्टीमेटली आपका दोनों प्रोसीजर्स का अल्टीमेट गोल क्या था कि अननोन मास को आइडेंटिफाई करना है। नाउ सी हाउ ट्रिकी इट वुड हैव लुक्ड लाइक, बट द क्वेश्चन इज सो सिंपल, सो डूएबल, आप इजीली वैलिडेट कर पाए, है ना। They can only be applied, so again only we can't say that they can only be applied to small solid objects. They involve attraction between objects of similar mass, again we can't comment on this. So what is the correct answer? C. मतलब A B D E में कुछ tricky नहीं है, कहीं फंसने वाली बात ही नहीं है। You know कि both are being used to identify the masses, और conclusively बोला है कि भाई this is the procedure and hence we'll be able to identify or deduce the mass, right? Easy question, isn't it? चलिए, now let's come to the next question. Please try this. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज मतलब रिट्रीवल है, आप इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। जब भी अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिले मतलब इंफॉर्मेशन है, यू आर फेचिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर रिट्रीविंग इट, राइट, एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड you are basically using it to answer. So it's a retrieval question. The tension in the string mentioned in lines 8, 9 is analogous to which of the following aspects of a double star system, right? तो उसने बोला था कि टेंशन क्रिएट होती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो if you come to the come to the passage, ठीक है, so you can read this. See, depends on the gravitational force between them which holds the system. This attractive force analogous to the tension in the string. डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, बस आपको रिविजिट करके इंफॉर्मेशन को फेच करना है, और जहां भी एनालॉजी हो, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट हैक दैट विल रियली हेल्प यू। अगर ऑथर कहीं भी एनालॉजी देता है 100%, राइट, पहले मैं 99.9 कहती थी, अब मैं 100% कहती हूँ, कहीं ना कहीं आइदर इन टेस्टिंग यू इन क्वेश्चंस और क्रिएटिंग ट्रैप आंसर चॉइसेस दैट वुड बी यूज्ड, राइट। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एनालॉगस टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दोनों मेथड्स को कंपेयर कर लिया है। नाउ यू हैव द आंसर चॉइसेस एंड यू कैन पिक अप द राइट आंसर। द स्पीड with which one star orbits the other, no, the gravitational attraction between the stars, exactly as it is mentioned, right? So that's how revisiting helps, right? जो chaos होता है आप directly options को देखते हैं. So what is the right strategy? You read the passage, right? Read it rightly, then of course you pay attention to the question. So understand the question task. Revisit if needed. मतलब for specifics तो I would say for every question. Predict the answer. या predict या validate the answer. And then do process of elimination. Right, so these are the 5 steps that you need to follow, right? तो आप मैथ्स में भी तो फॉर्मूलाज यूज करते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी 5 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, नॉट टेकिंग एनी टाइम, वी हैव बीन डूइंग इट थ्रू आउट, राइट। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन देखने के बाद जो मेजर गलती होती है कि सीधा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लिए फिर तो कोई ना कहीं ट्रैप है ही, राइट। अगर आप ऑप्शंस देखने से पहले पैराग्राफ को रिविजिट कर लेते हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है, अच्छा ये मेरा आंसर है, आंसर को इस तरीके से दिखना चाहिए, फिर कोई इनकरेक्ट चॉइस आपको स्वे नहीं करती, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। तो अमाउंट ऑफ टाइम, तो टाइम की तो बात ही नहीं, क्लियरली बोला एनालॉगस है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, तो उसमें तो हम स्टार्स का डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर रहे हैं, जो पहले वाला मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग वाला। कंबाइंड मास, अगेन दैट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो ए सी डी ई आप आउटराइटली चलते चलते ही आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे इफ यू हैव रिविजिटेड, एंड आफ्टर रिविजिटिंग कीप द आंसर इन माइंड एंड देन टेक अ लुक एट द आंसर चॉइसेस, राइट। अगर पहले आंसर चॉइसेस देख ली फिर पॉसिबिलिटी होती है कि कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस अट्रैक्ट कर जाए, राइट। चलिए, so now let's move to the next question. Please try this. So अगर आप देखोगे कि कैसे दो पैराग्राफ्स में रिलेशन है, तो पहला एक बेसिक एग्जाम्पल दे सकते हो और उसको कैसे यूज किया गया बाय द एस्ट्रोनॉमर्स और द फिजिसिस्ट, और
क्या टर्म इन्होंने यूज करी है, राइट, वट एवर द टर्म एस्ट्रोनॉमर्स, राइट, एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे इस प्रोसीजर को यूज किया. सो द एप्लीकेशन हैज बीन मेंशन्ड, राइट, एट अ लार्जर लेवल in the second paragraph. So let's take a look at the options that are available. First paragraph provides an illustration. हाँ, उसने एक illustration दी कि how the system works. ये swirl around करते हो, tension measure करते हो, राइट, टेंशन किसके प्रोपोर्शनल है, और फिर इवेंचुअली कैसे आपको मास मिल जाता है अननोन ऑब्जेक्ट का, और इसी की एनालॉगस सिचुएशन एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं for the star method that they have mentioned, right? So the first paragraph provides an illustration useful for understanding a procedure described in the second paragraph. Makes sense, right? We can keep this. कोई दिक्कत नहीं लगती पूरे स्टेटमेंट पे, पर until and unless you explore all the answer choices, never take a final call. Again, a standard rule you need to follow, right? जब तक आपने चारों इनकरेक्ट चॉइसेस को एलिमिनेट नहीं कर दिया, नो मैटर योर 200% श्योर, आपको आके एग्जामिनर ने कह दिया ये एक करेक्ट आंसर है, फिर भी जब तक आप बाकी चारों को रिजेक्ट नहीं कर देते, फाइनल कॉल ना लें, राइट. चलिए, लेट्स टेक अ लुक एट द अदर चॉइसेस. द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुज प्लॉसिबिलिटी, नहीं, उस सिचुएशन की प्लॉसिबिलिटी थोड़ी टेस्ट करी है, वो तो एक कंप्लीटली दूसरी सिचुएशन में एप्लीकेशन कर रहा है, राइट. सो प्लॉसिबिलिटी इज टेस्टेड, नो वी कांट से दैट, सो दिस गोज आउट. द फर्स्ट पैराग्राफ इवैल्यूएट्स द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोसीजर हुज एप्लीकेशन इज डिस्क्राइब्ड फर्दर. नो, अगेन अ ट्रैप आंसर चॉइस. वो तो एक प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ इट इज इम्पैक्टफुल, और दूसरी सिचुएशन में इम्प्लीमेंटेशन है सिमिलर प्रोसीजर का. So the second paragraph provides evidence to support a claim. Nonsensical choice, बहुत easy elimination है. Second paragraph analyzes the practical implications of a methodology proposed in the. Is it analyzing or is actually applying, right? So you need to see this, not analyzing, applying, right? So what is the correct answer choice that we have for this question? That will be choice A, right? Let's proceed to the next question. Please try this. चलिए, so let's see the question. The author of the passage mentions observations regarding the periods of double star system as being useful for determining what? Go back to the passage, right? So where have we discussed this? We have discussed this in the second paragraph, right? So this is saying that this attractive force analogous to tension in the string is proportional to stars' combined mass according to Newton's law of gravitation. By observing the time required for the stars to circle each other and measure the distance between them, we can deduce the restraining force. So restraining force is nothing but the gravitational force, and eventually we can identify the masses. So we are reading the lines again, verifying the statement, verifying the answer, and now we can take a look at the options that are available to us. The distance between the two stars, no. The time it takes the star to rotate on its axis, कहीं तो बोला नहीं. Size of the orbit, कहीं बोला नहीं. The degree of gravitational attraction, वो basically nothing but restraining force, right? We will keep this. The speed at which star system moves through space, again irrelevant. So what is the correct answer? D. जो restraining force था, that's nothing but the gravitational force that we can very well validate from the given context, right? So let's take a look at the next question. So primary purpose, अब इसके लिए आपको revisit नहीं करना. So जो भी questions जहाँ आपकी overall understanding of the text को check करते हैं, आप उसके लिए revisit नहीं करोगे. यहाँ पे एक standard rule बना लो, right? Always ensure it that you are not doing it, ठीक है? Let's quickly take a look at the options. Eliminate the incorrect ones. तो फर्स्ट पैराग्राफ कैसे एक प्रोसीजर दे रहा है, एक मेथड दे रहा है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट का वेट आइडेंटिफाई कर सकते हो. अर्थ पे जैसे करते हैं वो तो वहाँ पे काम करेगा नहीं, तो जब आप स्पेस पर हो तो आप कैसे वेट आइडेंटिफाई करोगे, राइट? सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. और सेकेंड पैराग्राफ एक एनालॉगस मेथड बता रहा है जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं टू मेजर द मासेस ऑफ स्टार इन अ डबल स्टार सिस्टम, राइट? सो नाउ टेक अ लुक एट द ऑप्शंस व्हिच आर देयर फॉर यू. एनालाइज अ नेचुरल फिनोमेना. इज इट अ नेचुरल फिनोमेना? नो भाई. Describe the steps by which scientific measurement is. Are they mentioning the steps? No. Point out the conditions. तो no, specifically conditions की बात नहीं करें. Contrasting, there is no contrast. So बचा क्या? E. That's the beauty of process of elimination. You keep on eliminating the incorrect answer choices. Whatever remains shall serve as the right answer. Take a look. Explain a method by which scientists determine an unknown quantity. Right? So basically पहले भी उन्होंने बताया, कर तो साइंटिस्ट ही रहे, और दूसरे में एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे अप्लाई करा. So ultimately how you are identifying an unknown mass in ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स में या जहाँ पे स्पेसलेस है,
So that's what is being discussed about, right? So what is the correct answer choice that we have? We have E. तो आप देखोगे contrast तो कोई दो different methods का contrast नहीं हो रहा. Conditions under which a scientific procedure is most useful. Again you can see most useful. I did tell you कि ऐसा most useful जैसा तो कुछ बात करी नहीं है. So अगर तुम condition से नहीं eliminate कर पा रहे, most useful से कर लो. CD का elimination easy है. A scientific measurement is carried out, right? तो the method has been explained. The step वाइज स्टेप डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, राइट? और नेचुरल फिनोमेना नहीं है. तो अगर आप देखोगे ए सी डी तो इजी एलिमिनेशन है. बी यू माइट जस्ट get trapped, but please understand that the stepwise discussion is not there. The methods are being talked about. So E is a better choice, right? So that brings us to the end of the discussion. So be careful of the trap choices that we have talked about, especially the extreme language, out of scope, and pay attention to the question, address the question. Make sure you're picking an answer choice which is answering the question, which might be otherwise true, but you have to validate the answer. You have to give the right answer to the question asked, right? So be careful about these traps. Keep them in mind while you are doing a process of elimination, while you're solving the questions. Eventually you'll get a hang of it and you will get better, right? So take good care of yourself, and like I told you in the beginning, please be consistent. With the GMAT students, consistency becomes slightly challenging, but I'm sure if you have made up your mind to crack GMAT and appear for the exam in the upcoming months, you're going to work harder. All my best wishes are there with you. Take good care of yourself. All the best.